बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रगले, मैं हूं आतिफ वकास और आज हम बीएस फिज़िक्स के एलिमेंट्री मैकेनिक्स के इस कोर्स में बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन के मुतालिक बात कर चुके हैं। मैंने आपको वर्क का मैथमेटिकल फॉर्म बताया था, फिर ये बताया था कि किस तरह वर्क उस प्रोसेस का नाम है कि जिस प्रोसेस के ज़रिए से एनर्जी चेंज की जा सकती है। अब आज हम वर्क को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। प्रीवियसली हमने जो वर्क डन पढ़ा था वो किसी कांस्टेंट फोर्स के लिए था। when the force is constant throughout the displacement, it's very easy to calculate work done. We simply multiply force with the displacement and get the result. Why we do that? Because if you remember, मैंने आपको बताया था इस तरह अगर हम ग्राफ बनाएं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट रखता हूँ, वर्टिकल एक्सिस पे फोर्स रखता हूँ, एंड दिस हैज़ यूनिट ऑफ न्यूटन्स एंड दिस इज इन मीटर्स. So if the force is constant throughout the displacement, then we are having a very simple graph, and to calculate work we need the area under this graph. And it's very easy to calculate the area of a rectangle. Just multiply this force with this displacement and get the result. Work is FD. But the situation gets difficult when the force is not constant. Why? That is because if the force is not constant, we would be having a graph that is not that simple. Then we may have graph like this. And how would we then calculate the work done if the graph is like this? Then we need to use some calculus, and we can solve this problem in many ways, but the easiest one is that divide this entire area into small pieces of same width, and that is dividing the entire area into small pieces, and then we would calculate the area of each page, and then we would add them all and get the total area under this graph. So for that I can so I divide this area into small pages, and then I see whether I can calculate the work done. It's very easier then. Once we have these small rectangles, we can easily calculate their area, and by knowing the area of each small rectangle, we would then add them all and we would get the required result. So इस तरीके से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा, एंड रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने ग्राफ के ऊपर का कुछ हिस्सा भी ऑक्युपाई कर लिया है, और अगर आपको वर्क चाहिए तो यू नीड द एरिया अंडर द ग्राफ. सो इस केस में ये जो विड्थ है, इस ग्राफ के हर एक पेज की विड्थ जो है उसको मैं डेल्टा एक्स कह देता हूँ, और हर डेल्टा एक्स के लिए अपना एक फोर्स है. फॉर एग्जांपल इस डेल्टा एक्स के लिए F1 है, फिर उसके बाद वाले के लिए कोई और फोर्स है, and I assume that force is constant throughout that delta x, but in this case you can see it is not constant because हमने थोड़ा सा ये जो एरिया है, ये सॉटूथ इफेक्ट जो है, ये एक्स्ट्रा हमारे पास आ रहा है. तो इस तरह इजम्पशन करने से, इसको इस तरह डिस्क्रीट पैकेट्स बनाने से हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरी एरिया को कैलकुलेट करना चाहते हैं.
हम इन स्मॉल वर्क्स को कैलकुलेट करेंगे। इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया एक स्मॉल वर्क है एंड दैट इज एफ डेल्टा एक्स, f1 delta x for this first one, for second f2 del x, for third it is f3 delta x, and this way we get the area of all those small rectangles, and at the end we have the area of the last rectangle fn del x. I have assumed this delta x same for all. Then if you add all these w's, all these small patches of work, you can get the total work, and work total would be then summation of all those works I from 1 to n f I delta x. So इस तरीके से हम उन स्मॉल पेचेस का एरिया फाइंड करके उन सबको ऐड कर देते हैं और हमें टोटल वर्क मिल जाता है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि ये चूंकि मैंने बड़े बड़े पेचेस बनाए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा साटूथ इफेक्ट आ रहा है, यानी कुछ हमने एक्स्ट्रा भी साथ में लिखा हुआ है। दिस इज रफ summation, this is not that accurate result. To get the more precise value of work, you need to have very small interval, and if I make this interval very very small such that I apply limit, so that limit is delta x approach to 0. This time I am making this interval very very small, then the same summation can be replaced by integration, and then you are having from 0 to some value d or x or whatever you call. चलो मैं इस x की आखिर वैल्यू को d कह देता हूँ। 0 से लेकर d तक इन सारे लेंस को आप इंटीग्रेट करें फोर्स के साथ, f डॉट dx, and this is then the total work done. इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस ग्राफ को दोबारा ड्रा कर लेता हूँ। मैं इस ग्राफ के इन एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए बहुत ही स्मॉल पेचेस बनाऊंगा, और बहुत ज़्यादा स्मॉल पेचेस बनाने से मैं क्या कर लूँगा, मेरे पास कोई साटूथ इफेक्ट नहीं आएगा। तो इधर अगर आप बनाए ना इसके छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, तो इसमें साटूथ इफेक्ट उस तरह नहीं है जिस तरह पहले हमें मिल रहा था, एंड दिस वे मतलब बात करने का ये है, जितना हमारा इंटरवल स्मॉल होगा उतनी हमारी समेशन के अंदर कंटिन्यूटी आएगी, उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा, एंड दिस रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेट कर लूँगा उन सारे स्मॉल dx को, यानी डेल्टा x इतना स्मॉल है कि उसके लिए फोर्स कांस्टेंट है, और फिर उन सारे f डॉट डेल्टा x dx को कैलकुलेट करके उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की, और चूंकि वो एक वेरिएबल फोर्स है, जैसे ही आप स्प्रिंग स्ट्रेच करते हैं उसमें एक्सटेंशन आती है, और एक्सटेंशन आने के साथ साथ क्या होता है, उसकी वैल्यू चेंज होती है। दैट इज़ बिकॉज, एक एग्जांपल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं, व्हेन force is exerted on this block
in that direction, we get extension in that spring, and अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और तो एक्सटेंशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है. एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज लेट सपोज x, वो यहाँ तक आ गया है. अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, kx. अब यहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ और थी. इनिशियली f1 was 0, f2 is kx. ठीक है. और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये भी बिल्कुल इस तरह का ग्राफ होगा, यानी स्ट्रेच होगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा विद इन द इलास्टिक लिमिट. ये ट्राइंगल होगा, लेकिन यानी एरिया अंडर द ग्राफ ये होगा. यहाँ पर बड़ा आसान होगा. f1 तो 0 तो सॉरी, f2 जो है कोई वैल्यू होगी kx, और फिर इस तरह x है. अब आप इस ग्राफ का एरिया अगर देखें तो वो क्या होगा. एरिया अंडर द ग्राफ इज सिंपली अ ट्राइंगल, and from here we can get the area f multiplied with x, but since it's a triangle we divide it by 2, so it is half fx. Why half fx? क्योंकि half base multiplied with height I call it f, so half fx is that work. And once again, if this f is substituted kx, we get half kx square. So this is the amount of work I need to do on this object in order to move it from here to here. And then once again we would see in potential energy that this work is stored in that object, and when we release that object, this energy converts back into kinetic energy of the block, and we are having some simple harmonic motion. So it's an example of work done with the variable force, because this force varies as we stretch this apart. So this is a variable force. Then आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी रॉकेट को भेजें तो उसकी ज़ाहिर है वो जितना दूर जाता है ग्रेविटी की वैल्यू कम पड़ती जाती है. सो डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है, मूव अवे एंड यू गेट वेरिएबल फोर्स. सो उसका वर्क डन वेरिएबल होगा. कभी ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल पाथ पे जाए. ये तो लीनियर केस था, ठीक है, और वो 2 डायमेंशनल पाथ पे जा रहा है. कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल भी साथ साथ चेंज हो रहा है, तो वो भी और फोर्स भी चेंज हो रहा है. तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं थोड़ी सी वो भी सिचुएशन ज़रा यहाँ पे ड्रा कर दूँ. अगर सिचुएशन इस तरह हो जाए कि ग्राफ कोई इस तरह हो, ग्राफ इस तरह हो कि ऐसे, मतलब कभी फोर्स कांस्टेंट रहा हो कुछ डिस्प्लेसमेंट के लिए, फिर कुछ देर बाद जो है किसी और डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स अचानक से बढ़ गया हो. सो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दीज आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोर्स, एंड वी आर हैविंग सम random graph that is not uniform. So in that case the force once again the total work done is calculated by taking the integration, and this is yet another example of work done by variable force. It is not that tomb like graph always, it may be like this. So once again here we need integration to get the result. जितने आप इसके स्मॉल पेजेस बनाएंगे, जितने आप उस इंटरवल को स्मॉल रखेंगे, उतना बेहतरीन रिजल्ट आपके हाथ आएगा. सो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं. सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में इस पे कुछ एग्जांपल शायद कर लें.
और फिर हम कंजर्वेटिव सिस्टम्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा ताला आपको अमान।